Hello, friends. This is a very proud privilege of mine to have a group of people passing from same university, and they come from same state of India. And this is the best, I think, I would say, the snapshot I would like to see when we do these kind of sessions. So many people, friendly people passing from the same university and then getting together to share their experiences with all of us. And first of all, I congratulate all of you. And it is really the proud moment for any faculty member to see such happy, smiling faces after the exam is over. And may God bless them also who could not make it this time. And next time, I'm sure they will be also sitting in the same seats where you are today. So once again, congratulations to you. सबको बहुत बहुत बधाई. आपके पेरेंट्स को बहुत बधाई. आपकी फैमिली इतना प्राउड होंगी इस समय कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था एक टाइम पे आपको डॉक्टर बनाने के लिए बाहर भेजने का, आपने ये सही प्रूव कर दिया कि वो सही डिसीजन था और आज वो आपसे ज्यादा खुश होंगे एंड आई एम श्योर अबाउट दैट. सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बारी बारी से कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए. व्हाट यू वांट टू शेयर, व्हाट वेंट वेल विद यू, क्या सही रहा आपके साथ, क्या आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, ताकि जो जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं हमें, वो भी आपकी बात से कोई बात अपना पाए और अपनी जर्नी को इजी और सक्सेसफुल बना पाए. तो आई विल स्टार्ट विद राजवी. राजवी, Yes, sir. congratulations to you. Hello, sir. Yeah, congratulations to you. Sorry, sir. Congratulations to you. Yeah, thank you so much, sir. So can you tell me, Rajvi, for which university you all are from? So we all are from University of Northern Philippines. Okay, wonderful. And you all belong to Gujarat, and that's one of my favorite states to be in. Sir. And I'm die-hard fan of Gujarati food. Believe me, I can. So, Rajvi, if I can visit ask, us when you come. Yeah, definitely. Waiting for the COVID to be over, and then we'll be there. And Rajvi, if I can tell you that, what if I ask you that what really was the pillar of your preparation? What would you call it? That what went right with you? So first of all, I would say faith and trust in yourself. The second would be consistency and discipline. And just go with one source. That would be the main pillar. And trust in your teachers and do your notes. Do not go anywhere else. Wow. That would be my main suggestions. You have summarized everything, Rajvi. She has said that trust one source, which we have been saying again and again. Your notes are the main thing. Then number 3, consistency is very important. Start from January and be in the same upbeat kind of preparation till the time, the June 4th exam happens, for the people who are listening to us. So consistency is very, very important. People can be disciplined, but they cannot be consistently disciplined. Now, this is the time of your life when you are expected to be consistently disciplined. And Rajvi really beautifully told us. And she has said, faith in yourself. Please hear all these words are pearls of wisdom, Beta, because these guys have just passed and they can share what really is striking the chord within them. And she's saying, अपने आप पे विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ. मैं मानता हूँ कि इस बार फेल हो गया या नहीं कर पाया 2-3 बार से, लेकिन मैं इस बार करके दिखाऊंगा. वो जज्बा जो अंदर होता है ना, वो आपको कहीं ना एक अच्छे पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट करता है. बिलीव मी, आप मॉलिक्यूलर लेवल पे भी ये फर्क पड़ता है और आप मेरे से बेटर जानते हो. So Rajvi, thank you very much for sharing that. And Divesh, congratulations to you also. And Divesh, अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि तुमने सबसे बड़ी गलती कौन सी करी, मतलब जो नहीं करनी चाहिए थी और जो स्टूडेंट ना करे? वो मैं इस बात को बहुत टाइम से कहना चाहता था. जो जूनियर्स मुझसे पहले भी पूछ चुके हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि whenever you are preparing for the exam and you are free of the other exams, the university exams and all, and you have only this one goal, and the thing is that you should join any classes. I'm not promoting this thing or anything else, but you should, when you decide to give the exams, and you should start your preparation as much early as you can, sir. Because when I joined the MIS classes, because I graduated a little bit late from my university, all of us actually. So I joined MIS on the August 1st.
when I got to know that the other guys have started already from the July, so I was actually surprised that the amount of the knowledge they have already gained was a lot, Yes. greater than I was actually having at the moment when I joined the Wow. Mist. या दिवेश, एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात की तुमने, और ये बहुत सीखने वाली बात है कि अभी जनवरी की बात कर रहे हैं, और दिवेश ने बोला कि मतलब मेरे को लगता है कि मुझे जुलाई में शुरू कर लेना चाहिए था, और आज सब लोग जनवरी का पहला हफ्ता अभी चल रहा है, हाँ जी, और जो उसके बाद भी वीडियो सुनेंगे जनवरी में सुनेंगे, उसके बाद ये बात निश्चित है जितना जल्दी शुरू कर लेंगे उतना रिवीजन का टाइम बच पाएगा, वरना बाद में फैकल्टी तो बोल के निकल जाती है कि 3-3 रिवीजन कर लो, लेकिन फैकल्टी को पूछना चाहते हैं हम लोग कि भाई 3 रिवीजन टाइम कहाँ पे, तुमने तो बोल दिया कि 3 रिवीजन कर लो, है ना? तो लगता है, हाँ और जी, हाँ बिल्कुल जी, बात में बिल्कुल आई थिंक राजवी और दिवेश ने बड़ी चीजें समराइज कर दी हैं, और एक एक बात ये वैल्यू वाली है बच्चे, ये बात समझने सबके लिए, जो बच्चे, देखो हमारा मेन मकसद ये इस सेशन का ये है कि जो बच्चे अगली पिछली बार नहीं हो पाए या जो इस बार पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो इन बच्चों से सीख पाए और कल को यहीं बैठे हो, यही एक ही मकसद है। मेरे को तो 3 वर्ड की वेट रहती है, राजीव आई पास, दैट्स ऑल। मतलब मेरे को तो ये 3 वर्ड किकिंग लगते हैं हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 3 वर्ड जो होते हैं ना, उसी के लिए काम हो रहा है सारा। और दिवेश ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया, शुरू से पढ़ाई करनी है, और राजवी ने बोला कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि बीच में मार्च में गायब हो जाना है कि वैलेंटाइन डे पे कुछ हो गया था और समझ नहीं आई बात किसी को आपकी, तो आप मार्च को तो मतलब देवदास वाले गाने सुन रहे हो, ये सब नहीं होगा। ये 6 महीने पढ़ने के लिए बने हैं, बाद में यू कैन जस्टिफाई योर हार्मोन्स विच एवर वे यू वांट टू। ओके, नाउ जील इज देयर विद अस। जील, Hello, sir. आई कांग्रेचुलेशंस जील, Thank you so much, sir. वंडरफुल जील। जील, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप किस बात में बिलीव करते हो कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या 8-10 से पढ़े गुजारा हो जाएगा? Sir, I would like to say do not skip any subject because वाह, yeah. ये सेशन बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना लोगों ने अपना जिस्ट दे दिया है, और जील ने पहले सेंटेंस में एक बात बोल दी है, मैं खुद नहीं कहना चाहता, जील ने एक ही बात बोली, सब्जेक्ट छोड़ने नहीं है भाई, और बिल्कुल सही बोला है जील। थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दैट जील। Yes, sir. Because many of time what happens is if for example I have skipped the dermatology and they have asked very basic questions, so बिल्कुल, we cannot skip any मैंने subject. एनेस्थीसिया नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ पाया पूरी तरह से, मैं एनेस्थीसिया की एमडी नहीं कर पाया पढ़ते पढ़ते, लेकिन मुझे मलहम पट्टी पता था, और वो क्वेश्चन आ गया और मैंने स्कोर कर लिया, तो भाई ठीक है ना, क्वेश्चन कर लिया तो 150 में तो ऐड हो गया। ऐसा थोड़ी उसने पूछा कि एनेस्थीसिया पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अच्छे से, Yes, sir. तो सारे सब्जेक्ट के मास्टर तो नहीं बन सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल, अनरियलिस्टिक है कि 4-5-6 महीने के अंदर आप सबकी एमडी करके बैठ जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन मैं तो हमेशा क्लास में बोलता था, आई डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट आई नो सफिशिएंट इनफ टू पास द एग्जाम, एंड दैट इज द वन थिंग आई हैव बीन लिविंग ऑल थ्रू ऑनेस्टली। पूरा तो कोई ना कर पाया यार, पूरा तो कोई भी नहीं कर पाता, और जील ने बहुत अच्छे से बोला कि दरमा में जो सिंपल क्वेश्चन आए थे, एटलीस्ट मैं वो क्रैक तो कर पाई, यू अंडरस्टैंड। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए मैसेज ये है, जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं अगले पेपर के लिए, कि भाई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है बेटा। हाँ, कुछ सब्जेक्ट मेरे थोड़े से कम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, और कुछ सब्जेक्ट में मैंने एक आध बार रिवीजन करके मेन वन लाइनर देख लिए थे या क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन मुझे ग्रॉस आइडिया जरूर था, ऐसी बात नहीं थी। जील, वुड यू एग्री टू दैट? Yes, sir, exactly. Very nice, very nice. A beautiful smile you have. Thank you, sir. Okay, sure. तो प्रिंस के पास चलते हैं। प्रिंस, यस सर। प्रिंस, बहुत बहुत बधाई हो, और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। परिवार में सब लोग बहुत खुश होंगे इस बात को। बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली। आई एम अ फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, आई कैन अंडरस्टैंड उनकी इमोशंस क्या होती हैं, कि भाई जो भी हमने डिसीजन लिया था अपने बच्चे के लिए, आज उसने करके दिखाया है, और अच्छा लगता है। और मे गॉड ब्लेस एवरीवन, जो नहीं हो पाए, जो अगली बार करेंगे, वो सब उनका भी यहीं पे ही, मतलब हम लोग इंटरव्यू कर रहे हो, बस यही दुआ है। और प्रिंस, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि आप क्या प्रेफर करते हो, कि मतलब लेट नाइट तक जागना या सुबह जल्दी उठना, कैसे आपका रिदम रहता है, मतलब विच वे you do that? Sir, actually, before in my university days, I used to wake up early morning and start, because I used to believe कि जितना early start कर सको उतना better है. But due to the time constraint and everything of classes, I never really followed anything more than 15 to 20 days. It was like shifting on to another thing. But the idea ultimately was कि
कंटेंट खत्म करना है और ज्यादा डिले नहीं करना है कि वो कल कर देंगे, परसों कर देंगे, क्योंकि वो ऐड होता जाता है और फिर क्लियर नहीं होता सर. सो वॉट एवर टाइम you have, utilize it. Like in between the sessions also you have 1 hour, so you can utilize that time also. In the early morning you can utilize some time. Don't try to like मुझे सुबह ही उठना है, मुझे रात को ही पढ़ना है, ये वो कर रहा है, मेरे से ये नहीं हो Yes. रहा है. Go with the बिल्कुल flow. The main idea is go with your flow, but finish everything that teacher said to do. बिल्कुल सही बोला प्रिंस ने। हर बंदे का अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हर बंदे की अपनी क्रोनोलॉजी होती है। मैंने ये देखा है, जैसे मतलब मेरे को अगर पूछो तो मैं मतलब आई कैन बी अवेक टिल 12:30 1 o'clock एंड मैं सुबह मतलब मैं 6 बजे तक उठ जाता हूँ। मतलब मैं 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोता हूँ, 5 साढ़े 5 घंटे मैक्सिमम टाइम है मैं सो पाता हूँ। इससे ज्यादा जरूरत नहीं लगती मुझे, आई डोंट नो व्हाई बट दैट्स द वे आई एम। हर बंदे का, लेकिन कुछ लोगों को 7 घंटे की नींद के बाद ही दिमाग की लाइट ऑन होती है, मतलब यू नो व्हाट दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर, वो होता है। तो बहुत ज्यादा ना किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात मैं जो लोग सुन रहे हैं ना उनको कभी भी किसी के अराउंड एक ऑरा या ऑ फैक्टर नहीं क्रिएट करना चाहिए कभी भी। यू आर अ यूनिक क्रिएशन। यस देयर आर चैलेंजेस राइट नाउ, जो बच्चे सुन रहे हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी क्रोनोलॉजी, अपनी बायोलॉजिकल रिदम को ऑनर करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो। तुम्हारा पड़ोसी रात को जाग के पढ़ रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम सुबह पढ़ने वाले हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब लोगों को मिनिमम बता रहा हूँ 5.5 से 6 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। इसके ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तुम्हारी मर्जी है करना चाहो तो, लेकिन बॉडी की एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इतना रेस्ट, एक स्टिक ऑन कर लो एक टाइम शेड्यूल को, कि रोज रात को जैसे मैंने 12 बजे सोना है तो मैंने 6 बजे उठ जाना है, मतलब ऐसे मैं 12:30 से 6 तक सोता हूँ, जैसे मेरा जनरली यही रिदम रहता है एक्चुअली। तो उससे क्या होता है कि बॉडी जो है ना वो अडेप्ट कर जाती है। जैसे मान लो आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, 9 बजे से क्लास है पर मैं 6 बजे उठ गया हूँ तो 6:30 तक पढ़ने बैठ गया, 6:30 8:30 तक मैंने कर लिया और बाद में ब्रेकफास्ट करके मैं अपना ऑनलाइन मैंने क्लास शुरू कर ली, तो मेरे 2 घंटे के आउटपुट सुबह पे निकल आए। यू अंडरस्टैंड। रात को क्योंकि मेरा नेबर पढ़ रहा है, उसकी बत्ती जल रही है और मेरे दिल में ऐसे पैल्पिटेशन हो रही है, ये क्यों पढ़ रहा है यार। हाँ, आधी तो प्रॉब्लम यही होती है, ये क्यों पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, वो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पड़ोसी क्यों पढ़ रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है। कोई बात नहीं, वो रात को पढ़ रहा है, हम सुबह पढ़ लेंगे। और प्रिंस ने सही बोला, बिलोंग टू योर ओन रिदम और उसी को ऑनर करना है एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर अ यूनिक क्रिएशन। और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए अपने बारे में रिस्पेक्ट, अपने कॉन्फिडेंस, राजवी ने बोला faith in yourself, that's very very important, है ना। हर्षल, कोई ऐसा मोमेंट आपकी प्रेपरेशन के टाइम जब आप बहुत लो फील कर रहे हो और आपने अपने आप को रिकवर किया हो, या कुछ ऐसा जब आपका प्रेपरेशन 2-3 दिन पढ़ने का मन नहीं किया हो, या ऐसा होता ही नहीं है, मतलब आपको क्या लगता है हर्षल? यस सर, डेफिनेटली ऐसा टाइम आएगा और आई थिंक मेरे साथ जितना ग्रुप थे उनका टाइम आया ही था ऐसा कि उनको लो फील होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ट्यूसडे टेस्ट थी अपनी तो उसमें लो स्कोर किया तो यार मैंने एक वीक की पढ़ाई की बट मैं स्कोर नहीं कर पाया। बट यू हैव टू लाइक वी हैव टू डू दैट, you don't have to stop that. Once you got low score you will not do hard work, you have to do that. So Yeah. I will tell to the student that don't be low for the score you got, but just try to do the hard work. उसमें से ढूंढो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। MCQ है, MCQ में देखो कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, क्या स्टाइल आपकी गलत है, उसको इम्प्रूव करो। बिल्कुल, हर्षल बिल्कुल सही बोला उसने। हर्षल ने सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए बोला कि, और सब बंदे अगर इस बात से एग्री करते हो तो एक बार सिर हिला देना कि भाई सब लोग प्रेपरेशन के टाइम कभी ना कभी नेगेटिव फील करते हैं। कुछ दिन होते हैं 2-4 दिन पढ़ने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता, पर ऐसा दिन आते हैं कि यार नहीं कर रहा भाई मन पढ़ने का, तो ना थोड़ी देर के लिए ना गाने वाने सुन लेने चाहिए यार, कुछ नहीं होता। ऐसा कोई क्राइम नहीं है, हमने डॉक्टर बनने को क्राइम नहीं कर लिया, ऐसा नहीं है। यस, इस समय एक डिमांडिंग पीरियड है लाइफ में, यस मानते हैं, लेकिन उसमें यार मुझे, आधे लोग तो यूट्यूब पे इसलिए जाते हैं कि मुझे नेगेटिव क्यों फील होता है। अरे भाई, हर बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं ना, होते नहीं होते? ऐसे तो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं तो करंट ही ना फ्लो करता ना। हम नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाते हैं ना तो इतनी स्ट्रेंथ आती है। आपने देखा कभी कभी नेगेटिव हो जाओ बहुत ज्यादा कि यार मन ही नहीं करना, 2-3 दिन इतनी प्रोडक्टिविटी लो हो गई, लेकिन चौथे दिन जब पढ़ना शुरू कर देते हैं ना तो अच्छा लगता है अपने बारे में। दैट्स द वर्ड लाइफ। और जो बंदा तुम्हें बोले ना मुझे नेगेटिव कभी फील नहीं होता पढ़ते हुए, तो उसका भाई अगला बुद्धा डिक्लेयर करने की तैयारी कर लो उसको। तो बता रहा हूं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो ढूंढ रहा हूं ऐसे बंदे को जो ये क्लेम कर पाए कि मैं नेगेटिव फील, नेगेटिविटी इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हाँ, उसको लेके नहीं बैठ जाना, रोते नहीं रहना कि यार 2 दिन क्यों वेस्ट हो गए। अरे हो गए ना, आगे चलते हैं। 2 दिन सोचते हुए 2 दिन और वेस्ट कर दो, 4 दिन हो जाए, है ना। वो सब नहीं करना है। जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। हमारे
इंडिया में ऐसे प्रोवर्ब्स हैं जो कभी समझ नहीं आते थे हमें पहले, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि किसी बहुत समझदार बंदे ने ना काफी दिन रोने के बाद काम किया और बोला कि यार भाई इतने दिन क्यों वेस्ट कर दिए, तो बोला जब जागे तब सवेरा भाई, तभी सवेरा है। और नेगेटिव फील करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन हम बाउंस बैक करके कहानी को कहीं ना कहीं बना लेते हैं, और यही इसी तरह ही लाइफ चलती है ना। चल अब चलते हैं ऋतु पटेल के पास। ऋतु, कंग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much, sir. ओके, और कैसा लग रहा है? I'm feeling so good. चलो ठीक है, आई एम श्योर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक तरह का ना ये फीमेल एम्पावरमेंट भी है। बता रहा हूँ रीजन बता रहा हूँ क्यों मैं क्लास में बोलता होता था कि जिस दिन आप लोग एग्जाम क्लियर कर लेते हो ना, ये वाला मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने, ऐसा नहीं कि कोई आईआईटी के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा वो मिल गया, लेकिन आपने लाइफ लॉन्ग एक लाइसेंस मिल गया आपको प्रैक्टिस करने का। बिलीव मी, ये पूरी जिंदगी अच्छा खासा खाने पीने का भी गुजरात में मना है, आई नो, लेकिन अरेंजमेंट है। यू नो व्हाट, दिस इज लाइक दैट ओनली, यू नो व्हाट, इट इज एक्चुअली यू, एटलीस्ट लाइफ कहीं आपको लेके नहीं जाने वाली है, बहुत क्राइसिस में कभी नहीं जाओगे। फाइनेंशियल जितना मर्जी कह लो, एक लेवल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और ये एग्जाम हमें वहां तक ले आया है। इसके ऊपर आप कितना कर पाओगे वो आपकी अपनी हिम्मत, अपना जज्बा, अपनी सोच होगी। वो हर बंदे का यहाँ से पाथ अलग अलग हो जाता है, पर लेकिन एक मिनिमम गारंटी वर्ड बोलते हैं ना, मिनिमम गारंटी, ये मिनिमम गारंटी आ गई। और मतलब लाइक व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, दैट टुडे यू कैन प्राउडली, ऑल ऑफ यू कैन से टू योरसेल्फ कि आज से 1 साल बाद जब इंटर्नशिप कर लूं, या अगर आपने कर ली होगी, तो मैं कहीं ना कहीं पे भी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब शुरू करके अब मैं सेल्फ रिलायंट हो सकता हूँ। यू नो व्हाट, दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद स्काई इज द लिमिट फॉर यू। तो मैं अगर आपको एक चीज अगर मैं पूछना चाहूँ कि क्या लगता है कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में? Sir, there is a subject-wise weightage for every subject, but I felt this time that it wasn't that fixed. There was no important subject that you should read this only, and there were major subjects. Obviously, there were more questions like surgery and all these things, but I feel that minor subjects are also important. That one mistake was my one mistake was that I wasn't that what to say, consistent to revise every subject, because I was majorly focusing on major subjects, and I have some 2 or 3 subjects, like I feel biochemistry is so hard for me, so I left it because I thought I would waste more time if I revised that subject. So but some तूने बिल्कुल सही बोला कि ये जो थॉट है ना कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और वो नहीं इंपॉर्टेंट है, वो थॉट खत्म होता जा रहा है, और सब पेपर कॉम्प्रिहेंसिव बनता जा रहा है, और पेपर में काफी क्वेश्चन, काफी सवाल मिक्स होके इंटीग्रेट होके आ रहे हैं, है ना। तो उस लेवल पे प्रिपरेशन कर लो, और कुछ आपके बहुत अच्छे होते हैं, कुछ उस लाइन में थोड़े से कम होते हैं, लेकिन कुल मिला के आइडिया होना चाहिए आपको। ये बिल्कुल आपने तो अच्छा समराइज किया। तो अब हम चलते हैं ध्रुविल जोशी के पास। ध्रुविल who actually thought about this meeting. Thank you Dhruvil for thinking about this. It was Dhruvil's idea actually to organize this meeting. So Dhruvil, first of all बहुत बधाई है ना, बहुत अच्छा लगता है हमें भी ये चेहरे देख के। और ध्रुविल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैसेज देना चाहोगे आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, क्या करना चाहिए, या कोई आपकी जो एक होता है ना कि मेरा एक सीक्रेट रेसिपी है, Sir, I just want to say that I thought about to left pathology and ENT as a subject in the FMG, because I am so weak in the patho and ENT also. But after I joined MIST, I scored perfectly in my MCI exam in these 2 subjects, in the patho and in the ENT. So I want to say that don't fear about any subjects while preparing. Just focus and revise as much as you want, and just solve the MCQs on the daily basis, and you will go to go. Yeah, Dhruvel, this is again he's saying one thing, that MCQ रोज करने हैं, that's important. और सच में इसकी इंपॉर्टेंस है। एक तो MCQ करने कुछ फायदे हैं, एक तो अभ्यास होते रहते हैं, प्रैक्टिस होती रहती है कि MCQ करने हैं भाई, है ना। नंबर 2, MCQ करते करते आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आपके नोट्स की कौन सी लाइनें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा, आपको इनडायरेक्टली आइडिया हो जाता है कि नहीं, जब अगली बार रिवाइज करेंगे तो ये पॉइंट तो पेपर में 2-3 बार 2-3 तरह के क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसको जरा अच्छे से देख लेते हैं एक बार, है ना। तो एक तो ये फायदा रहता है, और तीसरा ये है कि आपको कहीं ना कहीं पे
कुछ चीजें मान लो आपकी नोट्स में उतनी ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन एमसीक्यू करते करते वो चीज समझ आ जाती है। रेट्रोस्पेक्टिवली वो चीज जब देखते हो ना, अच्छा इसका ये मतलब था, अच्छा इसलिए फैकल्टी ने ये लिखवाया था, है ना, तो वो चीजें वहां पे क्लियर हो जाती है ना। दैट्स वंडरफुल। एंड नाउ वन क्विक वन लाइन फीलिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम योर साइड, एंड देन वी वाइंड अप द सेशन। फर्स्ट दिवेश, वन लाइन मैसेज, वन लाइन, सर व्हाटएवर यू वांट। एक बात मैं बताना चाहूंगा। वो आपकी वो थे ना, वो एक सीख थी आपने दी थी आपके क्लासेस में कि when the computer screen on the exam day is on in your front and you don't know anything about the question, even the options, and the thing you have to do is that just mark the most beautiful answer. When I was giving the exams on the exam day, I was thinking about that thing specifically. अगर जब राजीव सर को मिलूंगा जिंदगी में तो ये बात बताऊंगा। थैंक यू दिवेश, थैंक यू, ये आई एम ग्लैड इट हेल्प ये यू। क्लास में बताना सर, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है। जरूर। हाँ जी राजवी, आप एनीथिंग फाइनल थिंग यू वांट टू से? I would like to say that just first focus on the most important topic and then you go sidewise, because this is just a screening exam and we have to score 150 marks only. No one is going anywhere if they are also getting 300. So just do the most important thing first. हमने कौन सा बार लिखना है? डॉक्टर राजवी विद द ब्रैकेट पास एमसीए मार्क्स 290 मार्क्स, है ना, ऐसा नहीं लिखना ना। तो गुड मैसेज है, that's the spirit. It's not a competitive exam. That's why I like FMG exam. You know what, there's no competition here, everybody can pass, may everyone pass. You know what, Prince, one quick message from your side, something you want to share? Sir, actually, I want to share two things that really helped me a lot. The first was like in the last 15 days, the idea that you gave, like you have done all the hard work that you are through, that you have to do, and now it's like summation to the God. That idea really helped me a lot. That I've done all my hard work, and now it's up to you. And I'll be doing my hard work for the next 12 to 15 days. But it's like that feeling that comes, like I've done it, and it's like submission to the God, that helped me a lot. The second is I would like to that was something that I learned, that if someone, like I used to analyze my answers with my friends कि ये तुक्का तूने लगाया तो कैसे लगाया, like sometimes there is some logic in tukka also, so I would like to learn that also कि ये कैसे लगाया. Sometimes that also helps. We really focus on the true, like ये सच हो गया, ये ट्रू हो गया, but the wrong ones जो आपके नहीं हुए और दूसरे के हो गए, that ये तूने 3 eliminate कैसे किए. So that really helped me a lot, and the Ragda Patties helped me a lot, sir, and it's like I cannot thank you enough, sir, for whatever you said helped me a lot. I never knew that Ragda Patty would be so helpful. It was one of my favorite dishes from Maharashtra. I've been traveling so much to in a different part of India. It's a very, very, very tasty thing from Maharashtra. Jill, one sharing from you at the end. Yes, sir. I would say exam day is also very important because take a good sound sleep of 7-8 hours before the day of exam. And sir, you told us that even if you know every other question, you will still clear the exam. So वो बहुत help किया, क्योंकि हर बार ऐसा होता है अपने उस पे ही फोकस करते हैं जो हमें नहीं आता है एग्जाम में. But we should focus. Yes, this question I know, and this will add 1 mark in my 150. Yeah, Absolutely. And revision is the key. Yeah, that revision is the key, and as Jill has really given very clear this thing, that from a student side, that okay, if you remember that okay, every second question if I know I pass the exam, then you have faith that okay यार बहुत कुछ नहीं भी आता ना तो भी खेल को बिठाया जा सकता. That's what I believe in, honestly. मेरे को idealism समझ नहीं, sorry for that, but that's the way I work. Harshal, आपकी तरफ से कोई sharing last में? Yes, sir. I will like to bring up that most of my juniors, or I say the ones with us who are not able to clear this, ask me that मैं भूल जाता हूँ, right? You also say in the class that it's normal for a human being to forget. So we should not get demotivated, but we should work hard
because as Jill also said that revision is the key. We have to revise, and we'll retain something. I'll say that today also I am also not remembering 100%, but yeah, if you revise first time, we'll get 50, 60, 70. It will always add up to your knowledge. So I want to give this message to the रिविजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड पहली बार पढ़ के भूल जाना, दूसरी बार पढ़ के भूल जाना, ये फितरत है इंसान की, क्योंकि पढ़ाई ऐसी अच्छी चीज नहीं है. कौन याद रखना चाहेगा कि कौन सा एक्सोकाइनेस एंजाइम होता है लाइफ में? यार कहाँ यार, ब्रेन इसलिए नहीं बना था, ये तो अननेचुरल चीज है. लेकिन अगेन हमारे इंडिया में बड़े सारे लोग आए और बड़ी सारी गलतियां करी. उन्होंने फिर बाद में कुछ बातें बोली और इतनी इंपॉर्टेंट है, मुझे कभी बचपन में समझ नहीं आती थी बातें. अब लगता है अगर आपने ये दोहा सुनाओ कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान. मतलब अगर रस्सी के बार बार चलने से पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है ना, तो बार बार रिवाइज करने से वो चीजें अंदर से फूटना शुरू हो जाती हैं. ये बातें बड़ी लॉजिकल है. पर 10th क्लास तक हिंदी का एक दोहा हुआ करता था और बड़ा गुस्सा आता था, क्यों पढ़ाते रहते हैं ये सब चीजें. लेकिन धीरे धीरे when you really live these feelings, then these things say ना कि ये लोग भी ये प्रॉब्लम फेस किया करते थे. अच्छी बात ये लगती है मुझे. So Ritu, what is your message? Final sharing from your side. So if I have to advise anything, then I'll advise to maintain consistency. It's very important to be consistent. And one thing I want to say is like never compare, because for me, I cannot work in the same schedule every day. Like everybody suggests that you have to be in a fixed schedule, but I cannot work in a fixed schedule. So everybody has different rhythm. Everybody has different way of learning. So they should follow their own learning pattern only. And for exam, I would like to say exam is never easy. Like exam is exam. Every exam is hard. So you should be confident enough for yourself that I can do this. So you can only be confident about yourself and don't compare yourself with others. Just do yours. तो ऋतु ने बिल्कुल दोबारा वही बात सबके लिए जो बोल रहे थे सब उसने हाईलाइट करी है, वो बात की आप अपने फोकस रखो, बाकियों पे नहीं है. जो बाकी कर रहे हैं वो उनकी जर्नी है, आपकी जर्नी अलग है. आप अपना ध्यान रखो, अपनी तरफ से करते रहो और कंसिस्टेंटली करते रहो. ये अगर आपको एक वर्ड ये समझ आया ना, कंसिस्टेंसी, जनवरी से लेके जून 4 तक हमारी कंसिस्टेंसी में पे कर जाएगी बेटा. हमारा IQ बहुत मैटर नहीं करता, बिलीव मी. पढ़ के समझ पाना आजकल बहुत कॉमन चीज है, बिलीव मी. पढ़ के समझ पाना बहुत कॉमन चीज है. समझ के याद रख पाना डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है. पढ़ के याद रख पाना ही तो मेन चीज है. पढ़ के समझ लेना तो बहुत कॉमन है. तो IQ इज अ वेरी कॉमनली अवेलेबल थिंग नाउअडेज. कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जो है इन 5 महीनों में इंपॉर्टेंट रहेगा. मैं सबको बताना चाहता हूँ ये बात कि आपको ये 5 महीने अलग तरह चीज. मैं तो हमेशा क्लास बोलता हूँ, आई एम प्राउड टू बी इल डिसिप्लिन. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इल डिसिप्लिन होने में. लेकिन लाइफ में कुछ मौके आते हैं जब डिसिप्लिन मांगती है आपसे लाइफ. अब ये मौका है, जैसे कि ऋतु ने बोला कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लास्ट में ध्रुवल आपकी तरफ से कोई शेयरिंग? Sir, I just want to say that just focus on one source, trust your teachers and their guidance and all, and just stay positive on the exam day, because there are a lot of rumors here and there, and just focus and just stay positive on the exam day. True. Thank you, Dhruval, for sharing that okay, जो भी चल रहा है बाहर चलने दो, आप अपने ध्यान रखो काम पे, अपने एग्जाम पे, और एग्जाम ऐसे ही पास होता है जैसे कि सब लोगों ने बताया. Okay, thank you very much guys, and on behalf of the whole team of MIST and all MIST faculty members, I must congratulate you one more time, and we truly want to tell you that we are proud of you, and through you we want to give hope, we want to give a lot of encouragement to the people who are preparing for the June exam. May God bless them too. May God bless you also for your future life and career and everything in life. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.